बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी किताब का नाम है वी आर गोइंग ऑन अ बेयर हंट बाय माइकल रोजन एंड इलस्ट्रेशंस बाय हेलन ऑक्सनबरी। चलो हम इस किताब को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग ऑन अ बेयर हंट। We are going on a bear hunt. We are going to catch a big one. What a beautiful day. We are not scared. Uh-oh. Grass, long wavy grass. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we've got to go through it. Swishy swashy, swishy swashy, swishy swashy. We are going on a bear hunt. We are going to catch a big one. What a beautiful day. We are not scared. Uh-oh, a river. A deep, cold river. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we've got to go through it. Splash, splosh, splash, splosh, splash, splosh. We are going on a bear hunt. We are going to catch a big one. What a beautiful day. We are not scared. Uh-oh, mud. Thick, oozy mud. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we've got to go through it. Squelch, 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 squelch. We are going on a bear hunt. We are going to catch a big one. What a beautiful day. We are not scared. Uh-oh, a forest. A big dark forest. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we've got to go through it. Stumble trip, stumble trip, stumble trip. We are going on a bear hunt. We are going to catch a big one. What a beautiful day. We are not scared. Uh-oh, a snowstorm. A swirling, whirling snowstorm. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we've got to go through it. Hoo, woo, hoo, woo, hoo, woo. We are going on a bear hunt. We are going to catch a big one. What a beautiful day. We are not scared. Uh-oh, a cave. A narrow, gloomy cave. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we've got to go through it. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. What's that? One shiny wet nose, two big furry ears, two big googly eyes. It's a bear! Quick, back through the cave, tiptoe, 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 back through the snowstorm, hoo, woo, hoo, woo. Back through the forest, stumble, trip, stumble, trip, stumble, trip. Back through the mud, squelch, 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 squelch. Back through the river, splash, splosh, splash, splosh, splash, splosh. Back through the grass, swishy, swashy, swishy, swashy. Get to our front door. Open the door. Up the stairs. Oh no, we forgot to shut the door. Back downstairs. Shut the door. Back upstairs. Into the bedroom. Into bed. Under the covers. We are not going on a bear hunt again. ये थी हमारी आज की किताब। तो इसे अब हम थोड़ा उर्दू में देखते हैं। ये एक फैमिली एडवेंचर है। फैमिली में है मॉमी, डैडी और उनके 3 किड्स। ये सबसे यंगेस्ट वन है। तो और उनके पास एक पेट भी है जो डॉग है। तो हम देखते हैं ये क्या करते हैं, कैसे जाते हैं। भालू के शिकार पर जा रहे हैं वो लोग। बेर कहते हैं भालू या फिर रीछ को। तो उनका इरादा है कि एक बड़े भालू को पकड़ के लाएं। कितना खूबसूरत दिन है बोल के वो लोग तैयार हैं जाने के लिए और उन्हें किसी किस्म का डर नहीं हो रहा। अब उनके रास्ते में आ जाती है ग्रास, और वो भी कैसी लंबी लंबी घास। तो वो कैसे जाएंगे? उसके ऊपर से नहीं जा सकते, उसके नीचे से नहीं जा सकते, उसके अंदर से ही गुजरना ज़रूरी है। तो देखो कैसे जाते हैं। स्विशी स्वशी, स्विशी स्वशी, स्विशी स्वशी। गुजर गए। अब घास में से गुजरने के बाद फिर से तैयार हैं और बहुत खुश हैं कि बहुत खूबसूरत दिन है और हम बड़ा भालू पकड़ के लाएंगे और हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। अब उनके सामने आ जाती एक रिवर, नदी।
नदी और वो भी उसका पानी कैसा है? वो नदी है गहरी और उसका पानी है ठंडा। अब वो उसके ऊपर से नहीं जा सकते, उसके नीचे से नहीं जा सकते, उसके अंदर से ही जाना ज़रूरी है। तो वो कैसे जाते हैं देखिए, सब अपने अपने शूज़ पकड़े हुए हैं, जूते पकड़े हुए हैं और पानी में से स्प्लैश स्प्लॉश स्प्लैश करते हुए गुजर रहे हैं। और बेबी को कौन कैरी कर रहे हैं? डैडी। अब फिर से तैयार हैं जाने के लिए। एक बड़ा भालू पकड़ के लाएंगे और उसका शिकार करेंगे, लाएंगे और खूबसूरत दिन है और हमें किसी किस्म का डर नहीं हो रहा। अब उनके सामने आ जाता है मड, कीचड़। कीचड़ कीचड़ कैसा होता? थिक होता है, उसके अंदर से चलना बहुत मुश्किल होता है। तो देखो कैसा, वो लोग सोचते हैं कि हम उसके ऊपर से नहीं जा सकते, उसके नीचे से नहीं जा सकते। ओह नो, उसके अंदर से ही गुजरना है। तो स्क्वेल्च स्क्वर्च स्क्वेल्च स्क्वर्च करते हुए गुजरते हैं। सबके शूज़ डैडी कैरी कर रहे हैं। तो सोचें कि जूतों के साथ अगर चलते तो क्या होता। ये क्वेश्चन आपके लिए। अब देखें, फिर जाने के लिए तैयार अपनी मंजिल को पाने के लिए। फिर शिकार पर चलते हैं और इरादा है कि बड़े भालू को पकड़ के लाएंगे। और दिन को देख के बहुत खूबसूरत दिन है और हमें किसी किस्म का खौफ नहीं हो रहा है। वो सोचते हैं और उनके सामने अब आ जाता है फॉरेस्ट, जंगल आ गया उनके सामने, जिसके अंदर घना जंगल है जिसमें कई सारे दरख्त हैं। और दरख्त इतने ज़्यादा हैं, कसरत की वजह से वहाँ पे अंधेरा भी छाया हुआ है। तो अब वो सोचते हैं कि हम इसके जंगल के ऊपर से नहीं जा सकते, जंगल के नीचे से नहीं जा सकते। ओह नो, इसी के अंदर से ही गुजरना है। तो अब देखो कैसे गुजरते हैं। स्टम्बल ट्रिप स्टम्बल ट्रिप स्टम्बल ट्रिप, लड़खड़ाते हुए उसके अंदर से गिरते पड़ते सब उठते हुए हिम्मत करके आगे बढ़ते रहते हैं। वी आर गोइंग ऑन अ बेयर हंट, फिर तैयार जाने के लिए। पूरी हिम्मतें जमा करके फिर निकलते हैं सफ़र पर, कंटिन्यू करते हैं, अपना सफ़र जारी करते हैं। तो और अब देखो उनके सामने आ गया स्नो स्टॉर्म। स्नो कहते हैं हल्की हल्की बर्फ़ को। बर्फ़बारी हो रही थी और तो कितना मौसम कितना सर्द होता है, आप समझ सकते हैं। बर्फ़ फ्रीज़र से भी ज़्यादा ठंडा होता है। तो जब सर्द मौसम में बारिश होती है तो वो स्नो फॉर्म हो जाती है, बारिश के ख़तरात स्नो बन जाते हैं। अब वो उसके ऊपर से नहीं जा सकते थे, उसके नीचे से नहीं जा सकते थे, उसके अंदर से ही जाना ज़रूरी था। तो देखो सर्दी से कांपते हुए, सब किसी के पास गर्म लिबास नहीं था, जैकेट्स कोट्स वगैरह नहीं थे, तो इसीलिए सब कांपते हुए हू करते हुए गुजर रहे हैं। अब आ गया उनके सामने एक, वो अपनी हिम्मतें जमा करते हुए, खूबसूरत दिन है और डर नहीं हो रहा कह के आगे बढ़ते रहते। अब उनके सामने आ गया एक केव। केव कहते हैं गार को। और वो गार कैसा था? तंग था, छोटा रास्ता था, तंग रास्ता था। तो वहाँ से गुजरते हैं, अंधेरा छाया हुआ था, पानी ड्रिप हो रहा था, ग्लूमी कहते हैं उसे। तो अब वो केव के ऊपर से नहीं जा सकते, केव के नीचे से नहीं जा सकते। ओह नो, उसको उसके अंदर से ही गुजरना ज़रूरी है। और देखो यहाँ पर छोटा सा बेबी रोक रहा है अपनी बहन को। तो अब वो उसके अंदर से टिप टो करते हुए जाते हैं। ये बेबी देखो, मॉम का हाथ पकड़ के डरी हुई है ये छोटी सी बच्ची। सब सहमे हुए हैं। क्या आ गया उनके सामने? वन शाइनी वेट नोज, चमकदार नाक है और दो बड़े बड़े कान हैं और देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। क्या है ये? इट्स अ बेयर, यानी एक भालू है, रीच। तो अब देखो उनकी क्या हालत होती है। चलो भागो यहाँ से, केव में से बाहर निकलते हैं टिप टो करते हुए। उसके बाद आ जाता है तूफान। तूफान में से कांपते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं और पीछे उनका बेर पीछा कर रहा है, पीछे आ रहा है। जंगल आ गया, जंगल में से स्टम्बल ट्रिप, लड़खड़ाते गिरते पड़ते उठ के भाग रहे हैं बेर से बचने के लिए। अब आ गया मड, कीचड़ में से गुजर रहे हैं, सब आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे से बेर भी आ रहा है। बेर को देखो पीछे पलट के भी देख रहे हैं, डर के मारे बुरी हालत हो रही है। अब देखो पानी की नदी आ गई, नदी में से वो भी गुजर रहे हैं पानी में से और पीछे बेर आ रहा है। उसके बाद में फिर ग्रास आ गई, ग्रास में से भी स्विशी स्वॉशी करते हुए तेज़ी से भाग रहे हैं बेर से बचते हुए। अब आ गया उनका घर। घर के दरवाजे पे पहुंच के जल्दी से दरवाज़ा खोले और अंदर चले गए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले गए। अब फिर ऊपर जाके ख्याल आया कि ओ नो, हम तो दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिए। तो वापस डाउन स्टेयर्स आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर वापस ऊपर जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, वहाँ पर बेड में जाके
रज़ाई ओढ़ लेते हैं और कहते हैं अब हम कभी बेर के हंट पर नहीं जाएंगे, शिकार पर बेर के कभी नहीं जाएंगे। देखो सबकी बुरी हालत हो रही है डर के मारे। यहाँ पर एक ही फैमिली मेम्बर है जिसे बेर से डर नहीं हो रहा है। कैन यू गेस दैट? किसको डर नहीं हो रहा बेर से? इसके पिक्चर्स देखें और एंड सोचें कि किसे खौफ नहीं है बेर का। और ये देखो बेर कहानी के आखिर में ये वापस जा रहा है उदास होकर। ये उदास क्यों है? ये बेर उदास क्यों है? ये आप सोचें और इसका आंसर आप खुद तलाश करें। आपके जहन में क्या आंसर्स आते हैं सोचें और गौर करें कि कैसा लगता है आपको बेर उदास क्यों जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी किताब और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिटिल व्यूअर ह्यूस्टन से, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहती, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनका नाम स्टार्ट होता है आर से। तो होप यू लाइक दिस बुक इंशाल्लाह। और हमारे सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ गए हैं माशाल्लाह आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। थैंक यू फॉर शेयरिंग माई स्टोरीज़ विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू। बाय। अस्सलाम वालेकुम।